ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کا آغاز دعا کے ساتھ. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما. آمین ثم آمین. ساہیوال میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. خود ساختہ مہنگائی سے عوام کی مشکلات بڑھ گئیں. یہ رپورٹ دیکھیے. مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. اس خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا اور 2 وقت کی روٹی کھانا بھی محال کر دیا. ضلعی انتظامیہ کے مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. پھل، سبزیاں، چینی، گوشت اور دیگر ضرورت کی اشیاء غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگیں. حکومت سے اپیل ہے کہ فروٹ وغیرہ، سبزی وغیرہ، سارا کچھ کھانے پینے کی چیزیں سستی کی جائیں تاکہ غریب آدمی خرید سکے. یہ نا آج ہم لاک ڈاؤن کے بعد آئے ہیں فروٹ لینے. ٹھیک ہے، یہ جو آلو بخارا ہے یہ 80 روپے پاؤ دے رہے ہیں اور شہری کا ڈبہ 300 کا دے رہے تھے اور 250 کا اب دیا ہے. ان کی وجہ سے کاروبار بالکل مکمل طور سے بند پڑے ہوئے ہیں. ہم بیکار ہوئے پڑے ہیں. پھل لیتے ہیں، پھل ہمارا فروخت نہیں ہوتا. یہ ہم تو بہت مجبور ہو چکے ہیں. برائے مہربانی ہم نے ووٹ دیے ہیں آپ کو، آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، لیکن غریبوں کا کچھ سوچیں. غریب کدھر جائیں؟ ملک احتشام علی، سچ نیوز، ساہیوال. مبارک پور میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے لگیں. دال، سبزی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. مہنگائی کی چکی میں پستے عوام نے ریلیف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا. یاسر نائچ رپورٹ کریں گے. غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی. آٹا، چینی، دالوں سمیت کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی. دال، چینی، مرغی کا گوشت اور آٹا مارکیٹ میں مہنگے داموں میں بکنے لگا، جبکہ کئی دکانوں پر چکیوں پر آٹا دستیاب ہی نہیں. مبارک پور شہر اور گردنواں میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے عوام شدید پریشان. دکاندار حضرات من مرضی کے ریٹ مقرر کر کے غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. سبزی، فروٹ اور دیگر اشیاء کی قیمتیں عام آدمی کے پہنچ سے دور ہونے لگی. گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت سمیت مرغی کے گوشت نے تمام حدیں پار کر لی. غریب عوام سخت پریشان، کوئی فریاد سننے والا نہیں. ایک طرف تو کورونا وائرس، دوسری طرف مہنگائی پہ مہنگائی جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. شہریوں نے ناجائز منافع خوروں کے خلاف ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور. ہر دن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کورونا وبا کے پیش نظر کاروباری بندش سے ہونے والی بے روزگاری سے بے حال صادق آباد کے شہری پریشانی کے عالم میں ہیں. حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں. آصف عوان کی رپورٹ. روز بروز بڑھنے والی مہنگائی سے مڈل کلاس طبقہ پریشان ہے تو وہیں غریب اور دہاڑی دار طبقہ پس کر رہ گیا. اشیاء خورد و نوش میں اضافہ اپنی جگہ. چینی مافیا کے بعد آٹا مافیا سرگرم ہونے لگا. شہری کہتے ہیں جو کہ مہنگائی کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش بہت مہنگی ہو چکی ہے، عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ پھر بھی سروائیو کر رہا ہے، لیکن دیہڑی دار طبقہ جو مزدور ہیں، ڈیلی بیسس میں کمانے والے لوگ ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. جو مافیا ہے وہ بھی سرگرم ہے اور آٹا بہت زیادہ بحران میں جا رہا ہے. آٹا نہیں مل رہا ہے، اس لیے آٹا اور ان کے چینی جو مافیا ہیں ان کی سب ایکشن لیا جائے. ادارے ضلعی و تحصیل انتظامیہ اشیاء خورد و نوش میں روز بروز ہونے والے اضافے پر نوٹس لیں اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کریں تاکہ خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. آصف عوان، سچ ٹی وی، صادق آباد. کیروڑ پکا میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اسپیشل پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نے مرغی کا گوشت زائد نرخوں پر فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کر دیے. فخر الزمان رپورٹ کریں گے. اسپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تحصیلدار ملک آفتاب ڈوگر نے گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے دکانداروں کو جرمانے عائد کیے. ملک آفتاب ڈوگر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر گراں فروشوں کے خلاف قانونی کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا. جرمانوں کے ساتھ ساتھ FIR بھی درج کی جائیں گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رو فخر الزمان، نمائندہ سچ نیوز، کیروڑ پکا. ملک بھر کی طرح وزیر آباد میں مہنگائی کا دن بدن اضافہ عوام کے لیے مشکلات. غریب اور دہاڑی دار طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے مہنگائی پر کنٹرول کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے. کچھ بھی سستا نہیں ہوا عوام کے لیے، تو مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. گورنمنٹ نے پیٹرول سستا کیا لیکن نہ کرائے کم ہوئے، نہ کوئی اور چیز میں کسی میں کمی آئی. گوشت کو دیکھ لیں تو مرغی کا گوشت 350 روپے کلو سے اوپر جا رہا ہے. کچھ بھی عوام کے لیے سستا نہیں ہے. ہر ایک چیز مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں سوئی ہوئی ہے. کسی چیز کو بھی کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. کسی چیز میں بھی کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا. مہنگائی ہے کہ دن بدن آسمان سے باتیں کی جا رہی ہے. غریب کی پہنچ سے تو سب کچھ دور ہو گیا ہے. پیٹرول سستا تو ضرور ہوا ہے لیکن اس کے ثمرات تو کسی کو غریب عوام کو مل نہیں رہے ہیں.
गोश्त मुर्गी का है तो वो भी आवाम की पहुंच से दूर है। दिहाड़ीदार मजदूर तबका कहाँ जाए, कहाँ से जो है वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात और जरूरियात का ख्याल रखे और पूरा करे। ईद के दिन भी इसी तरह जो है वो गुजर गए, ना कोई चीज सस्ती हुई, ना हुकूमत ने किसी चीज को प्राइस कंट्रोल किया कि गरीब आवाम को भी उसके समरात मिल सकते। महंगाई बहुत हो रही है, कोई कुछ नहीं करता पाया, गरीब आदमी ने कोई कुछ नहीं करता, ना गवर्नमेंट कर दिया, ना कोई जोर का मसला, ना नीचे ले आना ना मसला कर देने। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का पीर के रोज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। इरशाद बुखारी सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद कहते हैं कि अब गाड़ियों के मालिकान और मुलाजमीन की माली हालत बहुत खस्ता हो चुकी, आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलने से मुश्किलात का सामना है। अरशद सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ सोलंकी से जानेंगे। अशरफ, बताइएगा कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के इरशाद बुखारी ने हुकूमत की यकीन दहानियों से थक कर आज ऐलान किया है कि पीर से तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो है ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे और सिंध भर में ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के इरशाद बुखारी का कहना है कि अब गाड़ियों के मालिकान और मुलाजमीन की माली हालात बहुत खस्ता हो गई हैं, जिसकी वजह से जबकि जो आवाम को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फैसला किया गया है कि हुकूमत के यकीन दहानियों के बावजूद जो है ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन आज पीर से ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने जो है ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि 2 रोज कबल 3 वुज़रा से ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी की मुलाकात हुई थी, जिसमें हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि जल्द ही SOPs के तहत उन्हें ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत देगा। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। आटा बहरान पर हटाए जाने वाले सीनियर ब्यूरोक्रेट की दोबारा तायुनाती। विफाकी काबीना ने हाशिम पोपलजई को MD पेपरा तायुनात करने की मंजूरी दे दी है। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। चीफ रिपोर्टर ऑन शिराजी से जानेंगे, बताइएगा ऑन। जी बिल्कुल अरसलान, ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है और इस डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक तैनाती की गई है। आटा बहरान पर हटाए जाने वाले सीनियर ब्यूरोक्रेट की ये तैनाती है। हाशिम पोपलजई को और जो 22 ग्रेड के ऑफिसर है उनको MD पेपरा तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जरा ये बता रहे हैं कि वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। हाशिम पोपलजई को 3 साल के लिए MD पेपरा तैनात करने की मंजूरी दी गई है। अगर आपको थोड़ी तफसील बताऊं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आटा बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद फौरी इक़दाम किए थे और वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता माह हाशिम पोपलजई को सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी के ओहदे से हटा दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसरो बख्तियार जो वजीर थे नेशनल फूड सिक्योरिटी के, उनसे भी कलमदान वापस ले लिया था। ताहम अब ये एक अहम तैनाती सामने आई है और उनको जो है वो लगा दिया गया है MD पेपरा और इसकी मुद्दत जो है ये 3 साल तक होगी। जी शुक्रिया ऑन शिराज जी। हैदराबाद में हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। शहरी इलाकों में 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जहां ज़ेब अली रिपोर्ट करेंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। शहरी इलाकों में 12-12 घंटे जबकि देही इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ गर्मी और तपिश की वजह से परेशान है तो दूसरी तरफ हेस्को इंतजामिया ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया हर 2 घंटे बाद बिजली की लोड शेडिंग से परेशान कर दिया है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, 12-12 घंटे कर रहे हैं। अरे दिन में ये हालत हो पड़ी है, दिन में इतनी गर्मी है, गर्मी में मर रहे हैं बच्चे हमारे, परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा, फैक्ट्रियां भी बंद हैं, दुकानें भी बंद है, बाजार बंद है, लोड इतना है नहीं, मगर उसके बावजूद इतनी लोड शेडिंग समझ से बालातर है। 12 घंटे लाइट नहीं, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी काम चल रहा है। सुबह से
शाम 4 बजे तक लाइट नहीं। अगर गर्मी में मर मर के कितना मरेगा इंसान। शहरियों ने मजीद कहा कि सख्त गर्मी और सूरज की तपिश से बचने के लिए हम घरों पर ज्यादा क्याम करते हैं, लेकिन हेस्को की जानिब से लोड शेडिंग से बिजली बंद होने से घरों में बैठ भी नहीं सकते। शहरियों ने वफाकी वजीर पानी और बिजली और हेस्को चीफ अब्दुल हक मेमन से मुतालबा किया है कि वो हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया कम करके शहरियों को रिलीफ फराहम करने में अपना रोल अदा करें। कैमरामैन यूसुफ भट्टी के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात हवा भी उड़ा दिए गए। अहमदपुर सयाल में मिट्टी से लदी ट्रॉलियों की आमदोरफ्त ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तसव्वुर अब्बास रिपोर्ट कर रहे हैं। अहमदपुर सियाल असिस्टेंट कमिश्नर ने बगैर डाले के मिट्टी से लदी ट्रालियों के सड़क पर आने से सख्ती से खबरदार किया था, लेकिन इसके हुक्म पर आमद दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से ट्रालियां आवाम के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। ये ट्रालियां जब सड़क से गुजरती हैं तो मिट्टी की धूल उड़ती है, जो सड़क के दोनों तरफ बैठे आवाम को शदीद मुतासर करने के साथ साथ चारे की फसल को भी अपनी लपेट में ले लेती है, जिसको अक्सर मवेशी खाने से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। बारिश के दिनों में सड़क पर गिरने वाली मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से सड़क पर गुजरना मुहाल हो जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। जिन जिन के रोड के ऊपर घर हैं वो सांस लेने से भी मजबूर हैं, और बच्चे बीमार होते हैं जब सांस की बीमारियां पैदा होती हैं। मिट्टी से लदी बगैर डाले वाली ट्रालियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन वासिद इकबाल के साथ तसव्वुर अब्बास, सच टीवी, अहमदपुर सियाल। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जहाँ भाग मुतादिद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी, कीमती जानें निकलने लगी। मीरपुर खास में मोटरसाइकिल और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में बाप बेटा जहाँ भाग हो गए। मियांवाली के इलाके दाऊद खेल में कार और लोडर में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हुए। मियांवाली के इलाके मोच में मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुजफ्फराबाद में तेज रफ्तार जीप हादसे का शिकार हो गई। जीप में 12 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लिया के इलाके पीर जगी पहाड़पुर में 41 साल कबल बनने वाला रोड टूट फूट का शिकार। हादसा में कई कीमती जानें चली गई, लेकिन तामीराती काम शुरू नहीं हो सका। शाहिद खरल तफसीलात बताएंगे। पीर जगी तगल्लू मोड़ 17 किलोमीटर रोड जो कि 1979 में बनाया गया था, इन 41 साल दौर में कई हुकूमतें बदली, कई मेंबरान असम्बली ने हैट्रिक की, लेकिन हर बार झूठे वादे और दिलासे देकर वोट तो ले जाते रहे, लेकिन इस 17 किलोमीटर रोड को कोई सियासतदान न बना सका। 4 दहाइयों कल बनने वाले इस रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और फुटपाथ भी गायब हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। इन हादसात की वजह से कई माएं अपने लख्त जिगर से जुदा हो गईं और कई लोग माजूर हो गए, लेकिन झूठे वादे करने वाले सियासतदानों ने कभी भी पलट कर यहाँ के बासियों की खबर तक न ली। बड़े MP बड़े MN कई हुकूमत आईयां कई गईयां, इन्हू किसी ने नहीं टच किया, ना इन्हू बनवाया ते ना इनकी मुरम्मत कराई है। बेतहाशा एक्सीडेंट होए ने, बेतहाशा लोग जख्मी होए ने, बेतहाशा मर गए। 40 साल पहले बनने वाला रोड खस्ता हाल थी चुके, कीमती जाना दा ज़िया थींदा पे, आए रोज़ हादसा थींदे पैन, कोई पुछण ॾसण वाला कोई नहीं। MP MN सिर्फ वोट गिनण के हद तक महदूद हैं, लारे लपे ला के चले वञनि। अब देखते हैं तब्दीली सरकार 4 दहाइयों से राह तकते लोगों के इस मसले को कब हल करती है, या फिर साबका सियासतदानों की रिवायत को बरकरार रखते हुए वही झूठे वादे करती चली जाएगी। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खराल, सच न्यूज, पीर जगी पहाड़पुर लिया। पाकिस्तान भर से मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। राजाना की मसरूफ तरीन समंदरी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हादसात में कई शहरी जान से गए, लेकिन इंतजामिया को होश नहीं आया। अहले इलाका ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया। की मसरूफ तरीन समुद्री रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मेन रोड होने के साथ साथ 40 से ज्यादा देहात को मरकज रजाना से लिंक करने वाली इस सड़क की दोबारा तमीर न होने की वजह से अहले इलाका शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। आए रोज हादसात की वजह से कई शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि सड़क पर गहरे खड्डे बन जाने से गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का नुकसान अलग है। मुख्तलिफ औकात में कई सियासतदानों की जानब से सड़क की तामीर नौ के वादे भी वफा न हो सके, जबकि जिले इंतजामिया को बार बार सड़क की मुरम्मत की दरखास्त देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। आले इलाका ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द समुद्री रोड की तमीर नौ की जाए ताकि शहरी जानी और माली नुकसान से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मियां अदनान शरीफ, सच न्यूज, रजाना। तानियावाला में बारिश के बाद घर की बोसीदा छत गिर गई, जिससे एक ही खानदान के 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। फैसलाबाद के इलाके तानियावाला में
बारिश से बोसीदा मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी जबकि जख्मियों में 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीम्स फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं और उन्होंने जख्मियों को मलबे से निकालकर फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया। छत गिरने के बायस घर में रखा सामान भी टूट फूट का शिकार हो गया। अब्दुल हकीम के जिमनी कोट इस्लाम फूड सेंटर पर गंदम खरीदारी का हदफ पूरा कर लिया गया। गंदम की मजीद खरीदारी भी जारी है। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। अब्दुल हकीम के जिमनी कोट इस्लाम फूड सेंटर पर गंदम खरीदारी का हदफ पूरा कर लिया गया। गंदम की खरीदारी भी जारी। डीसी खानेवाल की सरपरस्ती में गंदम की बैनुल इजलाई स्मगलिंग भी कंट्रोल की गई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। फूड सेंटर पर मौजूद काश्तकारों का कहना था कि पंजाब हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से किसानों को खूब रिलीफ मिला है। फूड सेंटर के अमला ने बेहतरीन तामुन किया है। बारदाना के असूल से लेकर कीमत वसूली तक किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। गंदम बेहतरीन नरखों पर फरोख्त हुई है। बेहतरीन पॉलिसी पर काश्तकारों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन पेश किया। ओपन पॉलिसी के तहत इस बार पंजाब हुकूमत ने जो गंदम की खरीदारी की है, इसमें किसानों का बहुत फायदा हुआ है। व्यापारियों की लूट मार से बचे हैं, किसानों को मुकम्मल रिलीफ मिला है। इस सेंटर पे भी राना अजवर और उनकी टीम ने किसानों के साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया है। डिलीवरी चार्जेस भी पूरे मिले हैं। बारदाना लेकर जाने से गंदम की उतरवाई तक किसी भी मुश्किल का सामना नहीं रहा। इस पर जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने किसानों का मुकम्मल ख्याल रखा है। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फूड इंस्पेक्टर राना अजवर खान का कहना था कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल कर लिया है। पर गंदम की खरीदारी का अमल जारी रहेगा। काश्तकारों से मुकम्मल तावन कर रहे हैं। जी, सेंटर कोट इस्लाम पर ओपन पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी जारी है और हर आदमी जो भी अपनी गंदम फरोख्त करना चाहता है उसके लिए हमने पूरी सहूलियात का बंदोबस्त किया है। बारदाना के हुसूल से लेके पेमेंट तक हर मामले को हमने इंतहाई आसान कर दिया है ताकि लोगों को पेमेंट लेने में और अपनी गंदम यहाँ पर लाकर फरोख्त करने में किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हुकूमत इसी पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी का असूल यकीनी बनाए तो किसान व्यापारियों की लूट मार से बच सकते हैं। अगर हुकूमत पंजाब इसी पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी आइंदा भी करे, किसान खुशहाल हो सकता है। कैमरामैन मियां अदनान अली के साथ रजब अली भट्टी, सच न्यूज, अब्दुल हकीम। जिला इंतजामिया का जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। राइस मिल्स और निजी गोदामों से जखीरा की गई 24,000 से जायद गंदम की बोरियां कब्जे में ले ली गईं। जिला इंतजामिया की जानिब से कामों की वजीराबाद तहसील सदर के इलाकों में कार्रवाइयां की गईं। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद वक़ार हुसैन ने कार्रवाई करते हुए राइस मिल के गोदाम से जखीरा की गई 10,000 बोरी गंदम कब्जे में लेकर सरकारी गोदाम मुंतकिल कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर कामों की शाहिद अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर सदर सारिया हैदर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हवेली में जखीरा की गई 10,000 बोरी गंदम बरामद की। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान मजीद बोरियां बरामद हुई। गंदम की गैर कानूनी स्मगलिंग रोकने के लिए लगाए गए नाकों पर 3 ट्रकों से 1,000 से जायद बोरी गंदम पकड़ी गई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंसदादे जखीरा अंदोजी ऑर्डिनेंस के तहत कानूनी कार्रवाइयों के साथ साथ जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सोहेल अशरफ का कहना है कि हुकूमत पंजाब के हिदायत के पेश नजर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा कार वसी करने और नाजायज जखीरा अंदोजी के जरिए मार्केट में गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना होगा। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। फैसलाबाद में दूसरे रोज भी तमाम तिजारती और कारोबारी मराकज बंद हैं, मगर दुकानों के बाहर शहरियों का SOPs के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। फैसलाबाद से अली गौर की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। SOPs के तहत आज दूसरे रोज भी तिजारती और कारोबारी मराकज बंद हैं, लेकिन दुकानों के बाहर दुकानदारों और शहरियों का रश मौजूद है जो कोरोना को दावत देने के मुतरादिफ है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद तशवीशनाक है, लेकिन शहरी इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कोरोना वायरस से जो मरीज बढ़ रहे हैं ना, मर रहे हैं, वो तो मरेंगे। भूख से जो मर रहे हैं ना लोग, उनको चाहिए कि दुकानें खोल लें, दुकान खोल के एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करें। ये तो कोरोना को दावत देने वाली बात है।
اس میں احتیاط بہت ضروری ہے, احتیاط کرنی چاہیے. اور تاجروں کا جو مین مسئلہ ہے نا, انہوں نے صبح 9 بجے سے شروع کیا ہے شام 7 بجے تک. شام کا ٹائم جڑا وہ زیادہ بڑھایا جائے. بس ہماری تاجروں کی ہر طرح کی جو بھی ہے نا, گورنمنٹ کے ساتھ ہم پورا تعاون کرتے ہیں. اور ہمیں صرف یہ پرابلم ہے کہ جو صبح جو دکانیں 9 بجے کھولتے ہیں اور 5 بجے بند کرتے ہیں نا, یہ زیادہ پرابلم ہے. اس کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. حکومت نے جو 4 دن کے لیے دکانیں کھولنے کا آرڈر دیا ہے, وہ وقت بہت کم ہے, ٹائم کم ہوتا ہے, کسٹمر بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس وجہ سے بازار میں رش ہو جاتا ہے. 3 دن کا لاک ڈاؤن ہے, اس کو کم کیا جائے, ٹائم بڑھایا جائے. پہلے تو یہ کہ حکومت عوام کے بالکل ساتھ ہے, ہر طرح شانہ بشانہ حکومت بھی کھڑی ہے اور عوام بھی حکومت کے بالکل ساتھ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے اس کو بڑھا دینا چاہیے, صبح 9 سے 9 کر دینا چاہیے. ایس او پیز کے تحت آج بھی تجارتی اور کاروباری مراکز تو بند ہیں, مگر شہریوں اور دکانداروں کا غیر سنجیدہ رویہ کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر کا دامن نہ چھوڑیں تاکہ اس موذی وائرس کو شکست دی جا سکے. کیمرامین جوید بٹ کے ساتھ علی گوہر, سچ نیوز, فیصل آباد. کروڑ لال عیسن میں ٹڈی دل کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. کپاس سمیت تل کے باغات کو شدید نقصان پہنچا, کسان پریشان ہیں. ٹڈی دل کے خاتمے کی کوششیں بار ثابت نہیں ہو رہی. خضر حبیب رپورٹ کریں گے. ٹڈی دل کے لشکروں کا ضلع بھر میں حملوں کا سلسلہ جاری, کسان پریشان, کسانوں کی قیمتی فصلیں برباد ہو گئی. تحصیل کروڑ لالسن کے علاقوں میں ٹڈی دل کے حملوں سے تل, باغات, کپاس, مونگ, تربوز اور درختوں سمیت دیگر فصلات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. نئی کاشت کی گئی فصلیں ختم ہو گئیں. کسانوں کی پریشانی میں اضافہ, کسان اپنی مدد آپ کے تحت ڈرم ڈھول بجا کر ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں. انتظامیہ کی طرف سے ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کی گئی کوششیں بار ثابت نہیں ہو رہی. انتظامیہ کی طرف سے پاک فوج کے ساتھ مل کر ٹڈی دل کے تدارک کے لیے سپرے اور گڑھے کھود کر ٹڈی دل کے لاروے کے تدارک کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. کسانوں کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر ٹڈی دل کے تدارک کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ ہے. کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ خضر حبیب خان, سچ ٹی وی, کروڑ لال عیسن. لیاقت پور میں ٹڈی دل نے ڈیرے ڈال لیے, فصلات, باغات پر حملے نہیں رک سکے. کاشتکار مختلف طریقوں سے ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں, جبکہ فصلوں کے نقصانات پر کاشتکار شدید پریشان ہیں. عمران ضیاء رپورٹ کریں گے. لیاقت پور اور اس کے گرد نواح میں ٹڈی دل کے لشکر اور کاشتکاروں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. ہیڈ قاسم والا, فیروزہ اور چک عباسیہ اور دیگر علاقوں میں ٹڈی دل کے لشکر نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے, جس کی وجہ سے فصلات, باغات کا نقصان ہوتا جا رہا ہے. کاشتکار فصلات, باغات کے نقصان پر پریشان ہیں. کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت اپنی فصل کو بچانے کے لیے ڈھول کی تھاپ اور دیگر طریقوں سے ٹڈی دل سے مقابلہ جاری رکھا ہوا ہے. کاشتکار ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے مصروف دکھائی دے رہے ہیں. کاشتکاروں نے حکومت سے وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹڈی دل کے حملوں سے فصلات کے نقصان پر متاثرہ علاقوں کا سروے کروا کر کاشتکاروں کو معاوضہ دیا جائے, تاکہ کاشتکار خوشحال ہو کر مزید فصلات کاشت کر سکے. کیمرامین مرشد سراج احمد کے ساتھ محمد عمران ضیاء, سچ نیوز, لیاقت پور. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. دیگر شہروں کی طرح ہزارہ ڈویژن میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی آئی اور موسم خوشگوار ہو گیا. خاور علی رپورٹ کریں گے. ہزارہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں آج صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. ہری پور, ایبٹ آباد, گلیات, مانسیرہ, بٹگرام, تورغر اور کوہستان میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے اور موسم خوشگوار ہو چکا ہے. گزشتہ کئی دنوں سے سورج آنکھیں دکھا رہا تھا اور شدید گرمی کی لہر تھی جو اب ختم ہو چکی ہے. موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے شہری خوش دکھائی دے رہے ہیں اور موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اگلے کئی دنوں تک جاری رہنے کے امکان ہیں. کیمرامین اچھام خان کے ساتھ سید خاور علی شاہ, ہزارہ ڈویژن. ایبٹ آباد, نتیا گلی, ایوبیا, گرد و نواح میں بارشیں ہی بارشیں. بارش کے بعد گلیات کا موسم سرد ہو گیا. نتیا گلی میں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بارش کا یہ سلسلہ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ 3 روز تک جاری رہے گا. بھیگا موسم پھر گرمی کا توڑ کرنے آن پہنچا. اسلام آباد, لاہور, مانسیرت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں گہرے سیاہ اور بادلوں نے چھتری تانی تو ٹھنڈی ہواؤں نے بھی خوب ساتھ نبھایا.
कहीं हल्की फुहार से मट्टी खुशबू से महक उठी तो कहीं मूसलाधार बारिश ने समा बांध लिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि हफ्ते के रोज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। बलोचिस्तान में योब, मूसाखेल और गिरदनवाह में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में खिता पोटोहार, सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, लिया, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, लिया, बहावलपुर, खानेवाल, साहेवाल, ओकाड़ा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान यालाबारी भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब कराची समेत सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास और हैदराबाद में आज से दोपहर तक गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है, जिसके नतीजे में टिड्डी दल की रेगिस्तानी इलाकों में एलगार का भी खदशा है। पेशावर में शहरियों ने सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी को खूब सराहा। शहरी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में इस इकदाम से गरीब लोगों की मदद होगी। सच टीवी की तरफ से नेकी की टोकरी का जो बेड़ा उठाया गया है वो बेहतरीन एक कोशिश है। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे नेक काम का साथ दें जिससे गरीब लोग बेहतरीन इस्तिफादा हासिल कर सकें। सच टीवी ने जो ये नेकी की टोकरी वाला काम शुरू किया है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें जो छोटा तबका है उसके लिए ये रोटियां और ये तंदूरों पे इन्होंने जो शुरू किया है ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि ये सिलसिला गरीबों के लिए चलता रहे। सच टीवी ने नेकी की टोकरी के नाम से जो इस मुहिम का आगाज़ किया है ये एक अच्छी कोशिश और अच्छा काम है। अवामुल नास को चाहिए इस मुहिम को भरपूर तरीके से चलाते हुए हर गली महल्ले तक पहुँचाएँ। ये एक अच्छा आइडिया है कि हर तंदूर पे एक टोकरी रखी जाए और वहाँ से रोटियाँ लेने वाले ज़ायद पैसे दे के 2-3 रोटियों के पैसे वो रोटियाँ नेकी की टोकरी में डाली जाएँ और ज़रूरतमंद वहाँ से आके रोटियाँ ले जा सकें। नेकी की जो टोकरी सच टीवी ने शुरू की है और लिहाजा गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा रिलीफ है। जिस भाई के पास पैसे ना हो वो फ्री रोटी हासिल कर सकता है। इसमें हम सच टीवी वालों के भरपूर साथ तामुन करते हैं। अगर जहाँ तक हमारे तामुन की ज़रूरत हुई शाना बशाना इंशाअल्लाह इनके साथ खड़े होंगे। हम भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप भी इसमें हिस्सा डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इसमें से फ़ायदा उठा सकें। ये जो कैंपेन शुरू किया है इनको चाहिए कि अमीर लोग इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। गरीब लोग जो एक दिन का काज एक टाइम का मिल सकता है दूसरे टाइम को नहीं मिलती वो उनको ज़रा आसानी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जितने लोग भी हो अमीर लोग हो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिजली चोरी अब नहीं चलेगी। भावलपुर की सब तहसील ऊद शरीफ में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। कार्रवाई के दौरान 16 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मोहम्मद ताहिर रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला भावलपुर की सब तहसील ओद शरीफ में महकमा वापडा इन एक्शन ओद शरीफ एसडी महकमा वापडा मलिक जफर इकबाल ने अपनी टीम और पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करके कुंडी लगाने वाले कनेक्शन काट कर तकरीबन 16 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। जबकि बिजली चोर शहर के मुख्तलिफ मसाफात जिसमें बकरी बंगला, मुस्तोई, बेट अहमद, हलीमपुर, हेड पंजनंद के इलाके में बिजली चोर पाए गए। चोरों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन की मुहिम चलाई हुई है और ये चलती रहेगी जब तक के आखिरी चोर हम उसको लॉकअप में न ले जाएं। तो मैं मौजूद सार्फिन से ये अपील करता चलूँ कि बिजली चोरी के हवाले से हमारी हेल्प करें और जो बिजली चोर हैं उनकी निशानदेही करें ताकि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। बिजली चोर मुल्क व कौम के दुश्मन है, आखिरी चोर तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। एसडीओ महकमा वापडा मलिक जफर इकबाल ने कहा कि शहरी बिजली चोर की निशानदेही करे ताकि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सके। कैमरामैन जादू हुसैन के साथ आज मोहम्मद ताहिर साचो न्यूज़ ओद शरीफ। रहीम यार खान की तहसील खानपुर के नवाही इलाके फिरोजा में चोरी की वारदात। चोर भारी नकदी ले उड़े। जहां ज़ेब खान रिपोर्ट करेंगे। खानपुर के नवाही इलाका फिरोजा में चोरी की बड़ी वारदात। चोर रात की तारीकी में घर से 45 लाख ले उड़े। फिरोजा के मशहूर बिजनेसमैन मियां रियाज खरल जो के सोने का कारोबार करते हैं कि घर से नामालूम चोर 40 तोने सोना, मोबाइल और 3 लाख नकदी ले उड़े। मियां रियाज खरल ने सच न्यूज़ को बताया कि पुलिस ने शक की बिना पर घर की मुलाजिमा को भी गिरफ्तार कर लिया है और नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन 15 घंटे गुजरने के बाद भी अब तक पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ्त सामने नहीं हुई। मेरे घर आज रात वारदात हुई है। चोर आए हैं और एक कमरे में
तकरीबन 40 तोले सोना और 3 लाख के करीब कैश था, वो ले गए हैं। हमारे घर में एक मुलाजमा काम करती है, तो हमें उस पर 80% से भी ज़्यादा शक है कि उसकी वजह से ये वारदात हुई है। तो हमने पुलिस को बुलवाया, पुलिस बर वक्त पहुंची है और पुलिस ने उनको पकड़ा भी है, अभी उनको ले गए हैं। हमें उम्मीद है कि पुलिस हमारे साथ पूरा तामुन करेगी। बहुत भारी नुकसान हुआ है मेरे घर का, मेरी इज्जत को बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं यही RPO, DPO और मुतलका SHO से उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे साथ मुकम्मल तामुन करेंगे। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। सिंध के शहर ठुल में वारदातों का न थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका। जराइम पेशा अनासिर शहरियों के कीमती सामान लूट रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हामिद अली रिपोर्ट करेंगे। ठुल शहर से अमन का परिंदा उड़कर वीरान जजीरों में आबाद हो गया। लॉकडाउन कोरोना के सताए ठुल के शहरी महंगाई के बाद अब अमन जैसी सूरत हाल से भी महरूम। यहाँ पे कोई भी अमन का नामो निशान नहीं है। रोज चाबी चोर आते हैं और मोटरसाइकिलें छीन के चले जाते हैं, कभी मोबाइल छीन के चले जाते हैं। यहाँ का अमन बहुत खराब है। ठुल में हर रात को डकैतियाँ होते रहते हैं। पुलिस कामों से रोजाना 2, 3, 4 मोटरसाइकिल यहाँ पे जाते हैं। अब तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। हम SSP साहब जेकाबा से गुजारिश करते हैं कि ठुल शहर का अमन बनाया जाए। मोबाइल है हाथ में, आए चोर ले गए, छीन के गए। चोर मास्टर चाबी लगाकर मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे हैं और शहर भर में फोन पर बात करते हुए शहरियों से मोबाइल फोन छीनकर डाकू बआसानी फरार हो जाते हैं और शहरी घरों में भी गैर महफूज हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से 20 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और मुतअद्दिद मोबाइल फोन छीनी जा चुकी हैं। घरों और दुकानों से चोरी रोज का मामूल बन चुका है। मुजाहिरीन का मजीद ये कहना था, जब तक चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करके चोरियां खत्म नहीं कराई जाती, शहरियों का एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज, ठुल। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में भी कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नजीब आलम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। थाना बी डिवीजन में पुलिस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DPO मुंतजर मेहदी की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद की बेखकनी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान जिस्म फरोशी, मंशियात फरोशी, जुआबाजी जैसे घिनौने खेल में मुलव्वस थे और इसके साथ साथ 8 साल कबल हैदराबाद के इलाके से अगवा होकर रहीम यार खान में फरोख्त की जाने वाली लड़की को भी बाजियाब करवा लिया गया है, जिसको वर्षा के हवाले किया जा रहा है। तहम पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सरतोड़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और जल्द शहर को जराइम से पाक कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, रहीम यार खान। रहीम यार खान पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 8 साल कबल अगवा की जाने वाली बच्ची को ढूंढकर वर्षा के हवाले कर दिया गया। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। रेस्क्यू 1122 अपने फराइज की सरअंजामदाही में अपनी मिसाल आप है। रेस्क्यू 1122 अटक ने ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से एक रकत की रिपोर्ट जारी कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन इंचार्ज डॉक्टर मियां इशफाक के मुताबिक ईद की पुरमसरत मौके पर जहां लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशी। दुनियापुर के इलाके थाना जल्ला आराई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जराइम पेशा अफराद को धर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन की हदायत पर थाना जलाराई के SHO जफर करवा की सरबराही में चौकी थाना जलाराई के इंचार्ज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल बुआर ने पुलिस टीम के हमरा जराइम पेशा अनाज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाजायज असला रखने पर शहजाद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 12 बोर रिपीटर और कारतूस बरामद कर लिए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने जराइम पेशा अनाज के खिलाफ कार्रवाई करने पर थाना जलाराई पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जराइम पेशा अनाज का खात्मा मेरी अवलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनाज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और जराइम पेशा अनाज के साथ ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। झूठी FIR दर्ज क्यों की? टंडोल IR में खान पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इम्तियाज हुसैन रिपोर्ट करेंगे। टंडोल IR में खासकेली बरादरी के अफराद की जानिब से खान पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खान पुलिस की जानिब से खासकेली बरादरी के मोअज्जिन मोहम्मद अली खासकेली और लियाकत खासकेली पर झूठी FIR दर्ज की गई है। इन्होंने सख्त नारेबाजी करते हुए कहा कि पुलिस रिश्वत लेकर हमारी बरादरी के मोअज्जिन को परेशान कर रही है। इस मौके पर शौकत खासकेली, वसीम शरीफ खासकेली, अयाज खासकेली और दीगर का कहना था कि हम अपनी बरादरी के मोअज्जिन पर काटी गई झूठी FIR की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। SHO को मुअत्तल नहीं किया गया, इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई गई, तो हम जो ये हर डिस्ट्रिक्ट में कल से एहतियाती मुजाहरा करेंगे, जो हमारा हक है। हम चाहते हैं कि
जो भी मुजरिम है उनको पकड़ा जाए। ये एफआईआर जो है एक झूठी है, पैसों के ऊपर एसएचओ ने काटी है, एक राशि ऑफिसर है उसने झूठी एफआईआर काटी है। इन्होंने आईजी सिंध, डीआईजी और एसएसपी मीरपुर खास से मुतालबा किया है कि झूठी एफआईआर खारिज करके रिश्वत लेने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोला यार। रुझान में कच्चे के इलाके में अहले इलाका को खतरनाक मुलजिम की हलाकत महंगी पड़ गई। जराए पेशा गैंग ने बदला लेने के लिए पूरी बस्ती को आग लगा दी। इलाका मकीन घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। ताजों से बदअमनी के साए न छुट सके। इस दौरान बड़े बड़े पुलिस ऑपरेशन और आवाम के करोड़ों खर्च करने के बावजूद पुलिस शहरों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी न बना सकी। अहले इलाका आज भी डाकुओं जराइम पेशा गैंग के रहम करम पर अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। रुझान के इलाके कच्चा कुपड़ा में इस वक्त मतलूब डाकू सरगना मारा गया जब वो अगवा की वारदात के लिए एक घर में पहुंचा। अहले इलाका ने इंतहाई संगीन मुकदमात में मतलूब डाकुओं और दुल्हनी गैंग के सरगना को वारदात के दौरान फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया तो डाकुओं ने अहले इलाका मकीनों पर जमीन तंग कर दी। कत्ल का बदला लेने के लिए पूरी बस्ती को रॉकेट लॉन्चर गोले मारकर आग लगा दी। अहले इलाका अपने घर बार तमाम सारो सामान छोड़कर करीब पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं, जबकि उनके तमाम जमीनों, फसलात, माल मवेशियों पर जराइम पेशा अफराद ने कब्जा कर लिया है। जो है ना उनका हमने मारा है और बाकी जो है ना उनके जो अमले वाले थे उन्होंने जो है ना हम पे जो है ना हमला कर दिया है और उनके पास असला जदीद से जदीद तरीन है। हमारे घरों को आग लगा दी, हमारे मवेशी ले गए हैं और हम पे बहुत जुल्म और सितम हुआ है। जुल्म की कहानी जो छोटी बाल है मासूम जो घरों नहीं लेकर देने के साथ साथ बाने दे खीर शाम को बेच के खान चाहिए घिन दिया आज ऐसा बर्बाद दिखा सका पर मेहरबानी खान की जो सा अपील दी बैठा है असा मेहरबानी की बैठा नहीं कई डाकू सजो लगा हमला किते माल निकते दाने निकते जुगे सा निकते ने बागुलम थी गए घरे को बही ला रखे ने देखें जे इता लुटे ने बागंदा कर छोड़ी ने सको घरे को बही लगे दाने द गेट डो गए बागुलम थींदा पे हुकूमत कोई असनल इमदाद की बने। तासरीन का अपने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब, आईजी पंजाब पुलिस से फौरी मामले का नोटिस लेने जराइम पेशा अफराद के खात्मे के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलिक उज़ैर तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज़ रुझान। आरेवाला के शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। गर्मी में इजाफा होते ही शहरियों ने सड़क किनारे लगे सरदाई के पॉइंट्स का रुख कर लिया। जावेद रजा भट्टू रिपोर्ट करेंगे। बादाम, खशकास, चारों मगज और दीगर खुश्क मेवाजात से तैयार की जाने वाली ठंडी ठार सरदाई गर्मियों में मोस्ट वांटेड हो जाती है। यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सड़क किनारे लगे सरदाई के पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां पर शहरी सरदाई पीकर प्यास की आग बुझा रहे हैं। शहरी कहते हैं सरदाई गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। सरदाई गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है। मतलब इतनी शदीद गर्मी में इतनी गर्मी इससे बेहतर कोई और मशरूबात नहीं हो सकती। का लाजवाब तोहफा है। गर्मी को ख़त्म करने के लिए जो है लोग जहाँ से दूर दूर से पीने के लिए आते हैं, हम भी जो है जहाँ से जब गुजरते हैं तो पी के गुजरते हैं। बहुत अच्छा ही तोहफा है गर्मी के लिए, ठीक है ना। हम इसमें इस्तेमाल कर बादाम इस्तेमाल करते हैं, खसकास, सौंफ, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, छोटी इलायची, ये चीज़ें इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार की गई ये सरदाई गर्मी का तोड़ होने के साथ साथ जायकेदार भी है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। शेखुपुरा कचहरी में वसीका नवीस मजबूर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। टाउट माफिया के खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई नहीं। इस वक्त शेखुपुरा में मियां मेहरान एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरान बताइएगा। वसीका नवीस को आ रहे हैं रजिस्ट्री कराने वास्ते, वो साढ़े को डबल पैसे चार्ज कर रहे हैं कि कहता कि अगे भी रजिस्ट्री ब्रांच भी देने उत्थे असी पैसे दे के काम कराने। इस वास्ते दोनों हत्थां नाल लुट रहे ने। इंतजामिया नूं चाहिदा है कि आइंदा दा कोई सदेबाब गरीब आदमी दा कीता जाए। इमरान खान ने तो कहा सी कि पैसे जड़े ने 5% यानी कि अद्धे पैसों च रजिस्ट्री होएगी, लेकिन वसीका नवीस जड़े ने ना उस तरह ही डबल चार्ज दे नाल ही पैसे वसूल कर रहे हैं। पंजाब में मिलावट माफिया का नया मंसूबा नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 22,300 किलोग्राम जायदुल मयाद फंगस ज़दा चीज, 900 किलोग्राम स्टार्च, 200 किलोग्राम जायदुल मयाद बिस्का बेस तलब कर दिया। फरहान एजाज की रिपोर्ट। निजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की सरबराही में सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 22,300 किलोग्राम फिंगस ज़दा चीज, 900 किलोग्राम स्टार्च, 210 किलोग्राम जायदुल मयाद बस का बेस तल्फ किया गया। जायदुल मयाद चीज रखने और पैक करने वाले गेटवे इंटरनेशनल डेयरी प्रोडक्शन यूनिट सील करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।
डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स के जायदुल मयाद चीज को दोबारा जाली लेबल लगाकर सप्लाई के लिए तैयार किया जाता था। जायदुल मयाद अशिया का खुराक में इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र साबित होता है, जबकि फैक्ट्री में मुख्तलिफ जगह पर सीवरेज के नाक़िस इंतजाम थे और फूड लाइसेंस भी नहीं था। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि खुराक को दोबारा पैक करके मार्केट में सप्लाई करना संगीन जुर्म है। फूड अथॉरिटी कानून के मुताबिक जायदुल मयाद अशिया खुरनोश को तल्फ करके रिकॉर्ड रखना लाजिम है। फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। कराची में महंगाई का तूफान थम न सका। महंगाई के सताए हुए शहरी सख्त परेशान है। 2 वक्त की रोटी हासिल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने गरीब आवाम को खत्म करने का तहैया कर रखा है। शहर कायद में जहां शहरी दीगर मसाइल से दोचार हैं, तो वहीं महंगाई ने उनका जीना दोबर कर दिया है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया खुर्दोनोश की चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बहुत बुरे हालात हैं गरीब लोगों के। यहाँ पर रोजगार है नहीं, 3-3 महीने से किराए का घर है, बिजली गैस के बिल हैं, बच्चे हैं, राशन है। बहुत सफेद पोश लोग बहुत मुफलिसी में इस टाइम गुजारा कर रहे हैं और बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई को कम करने के जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। ऐसा दिल चाहता है कि बंदा इंसान खत्म कर दे, या खत्म करने के लायक तो उन्होंने छोड़ा नहीं है। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि गरीबी खत्म कर दूंगा, जब गरीब नहीं रहेगा तो गरीबी खत्म। सही कहा था उन्होंने कि मैं रुलाऊंगा, तकलीफ पहुंचाऊंगा। वो हमारे नहीं था कि आवाम को रुलाऊंगा, और किसी को नहीं। हमें रुला रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, और कोई बात। आटा, चीनी, दालें, गोश्त, मुर्गी, सब्जियां, फ्रूट की कीमतों में होशरुबा इजाफा होना 2 वक्त की रोटी हासिल करने में रुकावट का बायस बन रही है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम से किए गए वादे पूरे करे और महंगाई पर काबू पाए, ताकि गरीब और गैर मुतवसत तबके की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच।